اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها المشاهدون الكرام، أنا عبد السلام معكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستو، پیارے دیکھنے والوں، میرا نام ہے عبدالسلام. تو یہ اگر عربی میں بولنا ہے کہ میں عبدالسلام ہوں تو انا لگانا ہے نام سے پہلے. انا کا مطلب ہے میں، انگریزی میں آئی بولتے ہیں، آئی ایم عبدالسلام. عربی میں بولیں گے انا، الف نون الف نا، انا عبدالسلام. معکم، آئی ایم وتھ یو. ایها المشاہدون الکرام، ٹاٹھو وچن والو، ڈیئر آنریبل ویورز، اہلاً و سہلاً و مرحبا بکم باللغت العربیہ. Most congrats to you. Welcome to you for the Arabic channel, for the Arabic series. تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے تھوڑے بہت اسما پڑھے ہیں، آج انہی کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. تو چلیے شروع کرتے ہیں. بیگ ہمیں ہوتا ہے، چاہے سکول بیگ ہو، چاہے آفس کا بیگ ہو. اس بیگ کو اردو میں بھی کوئی ٹھیلا کہتا ہے، کوئی بیگ کہتا ہے، انگریزی میں بیگ ہی کہتے ہیں. تو عربی میں اس کو بولتے ہیں حقیبتن. حقیبتن کا مطلب ہے بیگ. تذکرتن، ٹکٹ کو بولتے ہیں، چاہے ایئر ٹکٹ ہو، ٹرین کی ٹکٹ ہو، تو اس ٹکٹ کو بولتے ہیں تذکرتن. صغیرن عربی زبان میں چھوٹے کو بولتے ہیں، چاہے چھوٹا آدمی ہو، چھوٹا پتھر ہو، چھوٹا قلم ہو. تو چھوٹے چیز کو بولتے ہیں صغیرن، اور کبیرن بڑے کو بولتے ہیں. جواز السفر، پاسپورٹ کو بولتے ہیں جواز السفر. صابن کو بولتے ہیں صابن، یعنی سوپ وی آر یوزنگ، اس کو بولتے ہیں صابون باللغت العربیہ. یعنی لگا بولتے ہیں زبان کو، عربیہ بولتے ہیں عربی کو. لغت اردویہ بولتے ہیں اردو زبان کو. لغت الانجلزیہ بولتے ہیں انگریزی زبان کو. تو ہم اس وقت لغت العربیہ پڑھتے ہیں. اس ونکس عربی زبان پڑھن. صابون ون صابنہ. دراجتن ون سائیکلس، سائیکل کو بولتے ہیں، بائسیکل کو بولتے ہیں دراجتن. مکواتن ون پریسس، دا آئرن وی آر یوزنگ ٹو آور کلوتھز. اس پریس کرن استری جو ہم کرتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں مکواتن عربی میں. بالو بولتے ہیں ڈرین کو. اس ڈرین آسان اس اند پک یپر یہ گٹر وٹر نیران، تو دیٹ از کالڈ بالو باللغت العربیہ. ان انگلش وی سے ڈرین. قطار بولتے ہیں ٹرین کو قطارن. قاف زیر کی تو الف زبر تو اور ادو پیشرون. قطارن ٹرین کو بولتے ہیں. مخدتن یا المخدہ تقیہ کو بولتے ہیں. زرن بٹن کو بولتے ہیں، چاہے بٹن کپڑوں کا ہو، پتلون کا بٹن ہو، بجلی کا سوئچ ہو یا لفٹ کا سوئچ ہو، ان سبوں کو بٹن بولتے ہیں. تو باللغت العربیہ وی سے اٹ زرن. تو اس طرح سے ہم نے آج 12 اسما پڑھے ہیں، 12 چیزوں کے نام پڑھے ہیں. اب میں تھوڑا بہت آپ کو اور 2 جملے بتاؤں گا، اور 2 لفظ بتاؤں گا جس سے آپ جملہ اسمیہ بنا سکتے ہو، جملہ بنانے کی کوشش کرو گے. میم الف ما جب عربی زبان میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ ما کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ ہاذا یا ہادا پڑھتے ہیں، ہاذا کا مطلب ہے یہ. ہاذا کا مطلب ہے یہ. ہاذا مینز دس اینڈ ما مینز واٹ. تو اگر آپ سے کوئی پوچھے گا
माँ और फिर दिखाएगा वो चीज़ जिसका उसको जवाब चाहिए, यानी सवाल करेगा आपसे। माँ आपने समझ लिया माँ का मतलब है क्या, व्हाट। और हाजा का मतलब है दिस, ये। तो ऐसे मैं आपसे सवाल करूँगा, माँ हाजा, हाजा किताबुन। आप जवाब दोगे हाजा मीनस दिस, किताबुन मीनस किताब। माँ हाजा, हाजा किताबुन। माँ हाजा, हाजा किताबुन। तो इस तरह आपने पहला जुमला सीख लिया। माँ हाजा का मतलब है व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। तो आप जवाब देंगे जो वो चीज़ होगा। अगर किताब होगा तो आप बोलेंगे किताबुन। माँ हाजा, हाजा कलमुन। माँ हाजा, हाजा कलमुन। माँ हाजा, हाजा कलमुन। इसी तरह अगर कुर्सी की तरफ कोई इशारा करेगा, आपको बोलेगा माँ हाजा, आपको बोलना है हाजा कुर्सियुन। रास्ते को बोलेगा, रास्ता दिखाएगा, आपको बोलेगा माँ हाजा, और आपको बोलना है हाजा सबीलुन। लाठी दिखाएगा आपको तो बोलेगा माँ हाजा या माँ हादा, आपको जवाब देना हादा असाउन। इसी तरह टिश्यू पेपर दिखाएगा या हैंकरचीफ दिखाएगा तो बोलेगा माँ हाजा, यू विल रिप्लाई हाजा मिंदेलुन। नोटबुक दिखाएगा आपको, कॉपी दिखाएगा कोई तो आप बोलेंगे, वो बोलेगा माँ हाजा, आप बोलेगा हाजा दफ्तरुन। टेबल की तरफ इशारा करेगा कोई तो बोलेगा आपको माँ हाजा, आप बोलेंगे माँ हाजा मकतबुन। लाइब्रेरी ऑफिस की तरफ कोई इशारा करेगा, बोलेगा माँ हादा, यू विल से हादा मकतबतुन। गाड़ी की तरफ कोई इशारा करेगा तो वो बोलेगा माँ हाज़ी, यानी हाजा बोलते हैं मैस्कुलाइन को। युस मुज़क्कर आसे तत् छ हाजा यवन वन अरबी ज़बान मंज। उस मुअन्नस आसे तत् छ यवन हादी वन। माँ हादी, हादी सयारतुन, ये गाड़ी है, लाइट व्हीकल है। माँ हाजा, हाजा मतारुन, ये एयरपोर्ट है। माँ हाजा, हाजा तायरन, ये जहाज़ है। पर चाबी की तरफ कोई इशारा करेगा तो दो बोलेगा माँ हादा, यू रिप्लाई हादा मिफ्ताहुन। घर की तरफ इशारा करेगा कोई तो बोलेगा माँ हाजा, यू रिप्लाई हाजा बैतुन। दरवाजे की तरफ कोई इशारा करेगा, बोलेगा माँ हादा, एंड यू रिप्लाई हाजा बाबुन। खिड़की तक की तरफ कोई बोलेगा आपको व्हाट इज़ इट, माँ हाजा, यू विल से हाजा नाफिज़तुन, ये खिड़की है। बेड की तरफ कोई इशारा करेगा तो ही विल टेल यू व्हाट इज़ इट और व्हाट इज़ दिस, यू रिप्लाई इन लगतुल अरबिया हादा सरीरुन। कमरे की तरफ कोई इशारा करेगा, फिर बोलेगा व्हाट इज़ इट, मा हाजा, तो आप बोलेंगे हाजा गुरफतुन, दिस इज़ अ रूम, ये कमरा है। इस तरह किचन की तरफ कोई बोलेगा मा हादा, यू विल से हादा मदबकुन। बर्तन प्रेशर कुकर की तरफ कोई इशारा करेगा, बोलेगा व्हाट इज़ दिस, मा हाजा, यू विल से हाजा किद्रुन। तो कप और गिलास की तरफ, कप की तरफ कोई इशारा करेगा या प्याले की तरफ तो बोलेगा मा हादा, यू रिप्लाई हादा कासुन। ब्रूम की तरफ कोई इशारा करेगा व्हाट इज़ दिस, यू विल से दिस इज़ ब्रूम, एंड इन अरेबिक लैंग्वेज यू विल से दिस इज़ मिकनसतुन, दिस इज़ मिकनसतुन, हाजा मिकनसतुन, हाजा मिकनसतुन। तो चाकू दिखाएगा कोई, बोलेगा व्हाट इज़ दिस, यू विल से हाजा सकीनुन। तो इसी तरह प्लेट दिखाइएगा कोई आपको तो बोलेगा मा हादा, व्हाट इज़ दिस, आपका जवाब होना चाहिए हाजा तबकुन, ये प्लेट है। स्पून होता है घर में तो कोई दिखाइएगा स्पून, आपको बोलेगा व्हाट इज़ दिस, आपका जवाब होना चाहिए हाजा मिल अकतुन। कोई जग दिखाएगा, छोटा सा गिलास दिखाएगा, बोलेगा मा हादा, यू विल से हाजा कोबुन, हाजा कोबुन, ये गिलास है। मस्जिद की तरफ somebody को आपको इशारा करेगा मा हादा, तो यू विल से हाजा मस्जिदुन और हादा मस्जिदुन। रास्ता की तरफ और कोई दिखाएगा आपको व्हाट इज़ इट, तो आप बोलेंगे हाजा तरीकुन, ये रास्ता है। पेपर कोई दिखाएगा आपको या पेज किताब का या कॉपी का,
या ब्लैंक पेपर ही दिखाएगा, बोलेगा आपको मा हादा, आप बोलेंगे हादा वर्कुन। इसी तरह बैग दिखाएगा कोई बच्चा या बुजुर्ग, तो आप बोलेंगे हाजा हकीबतुन। कोई छोटा चीज़ दिखाएगा तो आप बोलेंगे हाजा सगीरुन, हाजा कबीरुन, बड़े को आप बोलेंगे। पासपोर्ट दिखाएगा कोई तो बोलेगा मा हादा, यू विल से हादा जवाजुल सफ़र। और साबुन की तरफ, सोप की तरफ आपको कोई इशारा करेगा, वाह हादा, यू विल से हादा साबुन। इसी तरह somebody will say about cycle, what is it, तो आपका जवाब होना चाहिए हादा दराजतुन। प्रेस दिखाएगा कोई, इस्त्री दिखाएगा कोई तो यू विल से हादा मिकवतुन। तो इसी तरह ड्रेन की तरफ कोई इशारा करेगा, बोलेगा मा हादा, यू विल रिप्लाई हादा बालू। तो ट्रेन की तरफ कोई इशारा करेगा, बोलेगा व्हाट इज़ इट, व्हाट इज़ दिस, तो आप बोलेंगे हादा क़ितारुन। तो तकिया दिखाएगा कोई आपको तो बोलेगा व्हाट इज़ इट, मा हादा, ये आपका जवाब होना चाहिए अरबी ज़बान में हादा मिकदतुन। कोई बटन दिखाएगा या स्विच दिखाएगा, बोलेगा मा हादा, तो आपका जवाब होगा हादा ज़रुन, ये बटन है। तो अब तकरीबन आपने आज 50 जुमले सीख लिए, 50 जुमले आपने बना लिए। तो बेसिक आप कैसे सीख सकते हो, जो मैंने ये असमा 50 चीज़ों के नाम या 60 चीज़ों के नाम कल और आप आज के वीडियो में आपके सामने रखे हैं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यू विल डू माय डियर्स, आप ये ज़बान याद करोगे, क्योंकि हर किसी ज़बान का मुनसर 3 बातों पर होता है। एक होता है हर्फ, दूसरा होता है इसम और फ़ेल, इसम फ़ेल और हर्फ। तो पहले सबसे पहले मेजर पोर्शन ऑफ द अरबिक लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन द इसम, ऑन द नाउन। तो ये नाउन अस्मा हमें याद करनी चाहिए। अभी ये 50-60 आपने 2 वीडियो में तैयार हो गई आपके लिए। तो ये 50-60 आप नाम याद कीजिएगा। तो साथ साथ ही आपको मीम अलिफ मा याद करना है, जिसका मतलब अभी आपको रखना है सिर्फ क्या, व्हाट। इसके और भी माने हैं, वो आगे चलकर आपको समझ आएंगे। तो हाजा का मतलब है ये, मा हादा ये क्या है, हाजा किताबुन ये किताब है। होप यू विल अंडरस्टैंड एंड यू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। आप कोशिश करेंगे 1-2 बार ये वीडियो देखने के लिए, और आपसे इल्तिजा है, ये अरबी ज़बान है, ये बहुत आसान ज़बान है। अगर हम इसके साथ रोज़ या 2 दिन के बाद 10 मिनट सर्व करेंगे तो इंशाल्लाह हम जल्दी ये ज़बान सीख पाएंगे, और हम अपने आप को काफ़ी सारा फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। ज़बान के सीखने से हम इंसान बन सकते हैं, हम नूर की तरफ दौड़ सकते हैं, हम अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें समझ सकते हैं और समझा भी सकते हैं। तो ये मेरी गुजारिश है आपसे, आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस वीडियो को, इस चैनल को लगतुल अरबिया, दावरतुल अरबिया जो मेरे चैनल का नाम है, दावरतुल लगतुल अरबिया, आप इसको सब्सक्राइब भी करेंगे, और अपने बच्चों को, अपने बुज़ुर्गों को, सबों को ये दिखाएंगे रोज़ 10 मिनट, ताकि कुछ ना कुछ वो सीख जाएंगे, कोई ना कोई हर्फ उनके जहन में बैठ जाएगा, और मुझे भी सवाब मिलेगा और आपको भी सवाब मिलेगा। तो पढ़ने से पहले आपसे दुआ है कि आप सब पढ़ने से पहले ये दुआ पढ़िए ज़रूर, रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब ज़िदनी इल्मा, रब ज़िदनी इल्मा, रब ज़िदनी इल्मा।